फिर आवाज नहीं आ रही। चलिए आपको ये स्लाइड जो है लास्ट टाइम हमने जहां से डिसकंटिन्यू की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। फॉर द ब्रेक वी वर सीइंग दिस स्लाइड. This slide is being shown for you to make your work according to the similar things. Just guidance और guideline के इस तरह से आपने अपने काम को थोड़ा सा स्ट्रेट करना है. We were on to the H index. हमने मुख्तलिफ जर्नल आर्टिकल्स को देखा, उनके जर्नल्स के नाम देखे, उनके स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, HEC, क्वार्टाइल, SJR वैल्यूज देखी हैं, H इंडेक्स की बात कर ली थी. और जिसमें अब कॉलम्स कुछ नजर आ रहे हैं, देयर अगेन द रिलेटेड कॉलम्स व्हिच इंडिकेट सम ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल. लाइक अब जो कॉलम जिस पे हम आ रहे हैं वो है इम्पैक्ट फैक्टर का कॉलम. सो इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट दिस, so we have 5 journal articles shown here, and the column number 6 or 7 shows their impact factor. Impact factor articles का नहीं होता, impact factor journal का होता है. So journal impact factor is there. और ये कहाँ से मिलता है? From where you get the impact factor? Web of Science calculate करती है. It is calculated by Clarivate Analytics. Mostly it is mentioned on the journal web pages, but you get it confirmed through JCR. JCR is published every year and it is available if you have some access. So impact factor has been checked and mentioned against each journal, followed by site score. Site score is the impact of every article, average impact of an article published in that journal. So this is again given on Web of Science. So that has been computed. And last one is the JPI. JPI is Journal Performance Index, and it is found from HJRS. HJRS link, once you search articles over there, then you find out these values. So all the articles which have been read by this student has been checked for its quality. The 10 journal articles have been shown here. This slides is the first 5 journal articles, and the next slides are the rest of the 5 journal articles, along with the values which have been found and searched by the student. And everybody out of you has to do the same. Right? Now coming on to the next slide, which is showing the conference articles. Now this is not the journal publication. The previous parameters are generally for journals. They are not available for a conference. For conferences, you need to find something else. And वो क्या-क्या चीजें हो सकती हैं? वो there, some of them are shown here, and you can think of any other thing based on your reading and research. So the first one again is a conference article mentioned with the DOI. It means the conference article is available. It's a valid source. किसी खुफिया जगह पे नहीं रखा हुआ, बल्कि अवेलेबल है फॉर यूनिवर्सल ऑडियंस. DOI is digital object identifier showing that. कॉन्फ्रेंस का नाम लिखा हुआ है आगे, एंड देन इट्स गिवन कि ये कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग जो है वो स्कोपस में उन्होंने इंक्लूड की हुई है या नहीं की हुई. एंड आई शोड यू इट इन व्हाइल वी सर्चिंग द स्कोपस दैट स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस बोथ show
all the conferences which are indexed in those index systems. Conferences are also indexed by the Scopus and Web of Science. So both can be checked. Here, this student has checked Scopus, but Web of Science can also be confirmed that this particular conference proceeding is indexed with the Web of Science or not. Then H index has been shown here. अगर आप स्कोपस पे जाएं तो वहां पे स्कोपस पे इसका एच इंडेक्स भी आपको नजर आएगा, नोट कर सकते हैं आप. नहीं है तो नहीं है तो है, वो उन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है. देन साइटेशन इम्पैक्ट भी अगेन इट्स गिवन इन दैट स्कोपस पेज, वहां पे फिगर आउट किया जा सकता है. अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इसके अलावा कोई पैरामीटर इंक्लूड नहीं किया, बट अनदर पैरामीटर कुड बी कि ये कॉन्फ्रेंस कितनी दफा हो रही है. इट इज द 10th repetition, 20th repetition, first one, second one. Is it an international conference or a national conference? And then what is the acceptance rate or rejection rate? वो यहाँ पर include किया जा सकता है to mention the quality of a conference pay. But whatever has been done by this student has shown here paper title, conference name, and some of the parameters to confirm that the articles which he or she is studying are of some good conference, right? So similarly, 5 more are shown here. So 10 articles have been shown by the student, right? I can show you another student work as well, just for a comparison. उसको भी देख लें, फिर आपका सवाल पूछ लेते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं. वेटिंग में तो मैंने ऑप्शन खत्म की हुई है, होना नहीं चाहिए. वो वैसे ही वेटिंग में कुछ और जगह वेट कर रहे होंगे, इसमें तो वैसे ही कोई ऑप्शन नहीं. मेरे पास तो कुछ शो नहीं हो रहा. Ask him to join the correct page. Maybe he or she is previous one, first one में चला गया होगा, second को link करे. First one is closed. Okay, so I'm just going to show you the other one, new share. This is the okay. ठीक है जी, so this is now visible to you. ये एक और स्टूडेंट का काम है. Again, similar parameters have been investigated for the journal articles here. If you see here, only thing here is which is new, not available in the previous one, is the WXYZ category of the journals. बाकी सारा कुछ वही है जो कि पिछले वाले में था. और JCI बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर है एज पर JCR. वो मेंशन्ड है कि किस साल का है, 2021 का इम्पैक्ट फैक्टर है जो कि इसमें मेंशन्ड है. तो वो साल भी लिखा हुआ है, हो सकता है नए साल का ना हो, पुराने साल का हो, तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ मेंशन हुआ हुआ है. और कुछ और पैरामीटर्स मेंशन्ड है यहाँ. कॉन्फ्रेंस पेपर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने, इस स्टूडेंट ने स्कोपस, साइटेशन काउंट, देन परसेंटाइल मींस के ये अगेन दिस परसेंटाइल पैरामीटर इज गिवन बाय वेब ऑफ साइंस. SCR वैल्यू भी कुछ जगहों पे कैलकुलेटेड है. H इंडेक्स एंड सीरियल नंबर के इसका कौन सा नंबर है इस कॉन्फ्रेंस में, वो मेंशन्ड है. तो बेस्ड ऑन योर होमवर्क यू कैन डिसाइड अबाउट सम ऑफ द पैरामीटर्स जिनको आप चेक करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं. These are the rest of the papers considered by the student. So my requirement from you guys would be कि आपने अपने जो रिसर्च पेपर अब तक फिगर आउट किए हैं उनके लिए यही चीजें या यही जो आपका मैट्रिक्स है इसको अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड कर लीजिए. और अब तक जो आपने स्लाइड्स बनाई हैं उनमें ये स्लाइड्स ऐड कर लें. और आई एक्सपेक्ट कि अभी आपने 5 से ऊपर जा चुके होंगे, आप रिसर्च पेपर आपने और भी देखे होंगे, तो आई एक्सपेक्ट कि आप अराउंड 10 जनरल पेपर्स एंड 10 कॉन्फ्रेंस पेपर्स को इस तरीके से शॉर्टलिस्ट करें और नोट डाउन करें. ठीक है, बिकॉज एज फार एज द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रिसर्च प्रपोजल इज कंसर्न, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि इट शुड बी अराउंड 20 रिसर्च पेपर्स which you should discuss in the literature review of your research proposal. हमने एक दफा एक लेक्चर में बात की थी कि एक रिसर्च प्रपोजल के लिए रूल ऑफ थंब इज 20 आर्टिकल्स. फॉर थीसिस रूल ऑफ थंब इज 40 आर्टिकल्स. So 40 is for research thesis in literature review section, 20 is for research proposal in literature review section. ठीक है, and we discussed in detail कि कहाँ पे research proposal close होना है, कहाँ पे research thesis शुरू होना है, TH1 क्या होता है, TH2 क्या होता है. ठीक है, तो अगर अहमर ऑनलाइन है, इज अहमर ऑनलाइन?
नहीं है। देखिए यही वजह ना कि आप आते हैं जाते हैं, मर्जी से आते हैं मर्जी से जाते हैं, कभी आपने सुना कभी नहीं सुना, लेक्चर भी नहीं सुनने की कोशिश की, तो फिर सवाल जवाब ऐसे ही करेंगे जिस तरह कि उन्होंने किया था कि जी मुझे बताएं कि थीसिस में और प्रपोजल में क्या फर्क होता है। तो जाहिर बात है मुझे तो गुस्सा चढ़ेगा कि जी अब आपको मैं ये चीज जो है वो 3 4 5 दफा बता चुका हूँ, फिर भी आप मुझसे वही सवाल आके छठे वीक में कर रहे हैं। तो कसूर किसका है? मेरा कसूर है कि मैं आपको ठीक नहीं पढ़ा रहा, या आपका कसूर है कि आप फोकस्ड ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है? तो जब इंटरेस्ट ना हो तो फिर आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, आई एम पुटिंग इन माई ऑल माई एफर्ट्स, बट इफ स्टिल यू आर नॉट इंटरेस्टेड, सो इट इज योर प्रॉब्लम नॉट माई प्रॉब्लम। सो आई विल ऑलवेज थ्रैश अ पर्सन लाइक दिस कि जो इस तरह के सवाल मुझसे करेगा। ठीक है, फिर डू नॉट टेल के जी, या डू नॉट से टू मी के जी मैं सख्ती से बात कर रहा हूँ। ठीक है गुल साहब, क्योंकि मेरा हक बनता है कि मैं आपसे सख्ती से बात करूँ। अगर आप क्लास में अटेंटिव भी नहीं है, लेक्चर भी नहीं सुन रहे हैं, और फिर आके इस तरह के फजूल किस्म के सवाल करेंगे, तो वो फिर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आप पे आएगा। ओके, लीव दैट असाइड। लेट मी मूव ऑन टू दी सिंथेसिस मैट्रिक्स, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद नेक्स्ट है, जिसमें हमने कहा था कि एक रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिक्स बनाना होगा अपने। तो वो क्या चीज है, उस पर हम आ जाते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जिनको मेरी आवाज आ रही है? आप में से कोई सवाल जवाब है तो पूछें। नो सर। नो क्वेश्चन सर। अच्छा जी, आई होप दिस न्यू सेट ऑफ स्लाइड्स आर विजिबल टू एवरीबॉडी। यस सर, विजिबल। अच्छा जी, ओके। सो कमिंग ऑन टू द सिंथेसिस मैट्रिक्स, जिसकी हम बात यहाँ पे अभी कर रहे हैं। सिंथेसिस मैट्रिक्स इन फैक्ट एज शोन हियर, it is to organize and synthesize information from multiple sources used in systematic literature reviews for some analysis of existing literature. It is a table or a spreadsheet with columns representing the themes, topics, research questions being addressed in that study, while the rows represent the different sources of information being analyzed, such as articles, books, or other documents. तो आइडिया तो हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, राइट? But let us do something else. The information includes a summary of the key findings from the sources that supports or contradicts the search questions or themes being explored. It compares and contrasts the information from different sources, identify patterns and trends in the data, and draw conclusions about the overall state of knowledge on a particular topic. Okay, अगर इसको हम थोड़ा सा इसका एक पैटर्न चेक करें. Now this is one of the pattern which could be made for research synthesis matrix. There could be another one like this one, but say अगर इस पे हम फोकस करते हैं, यहाँ पे बेसिकली अब क्या किया गया. देखिए, research questions have been concluded by yourself during your homework. Everybody out of you has figured out कि मैं इन research questions को आंसर करने जाऊंगा in my title. So those could be 1, 2, 3, 4, 5 research questions. अब वो रिसर्च क्वेश्चंस की बेस पे ही आपने रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू किए हैं, जो कि अभी हमने हाईलाइट किए हैं कि 5-10 जर्नल पेपर्स हो गए, 10 कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गए, राइट? उसके अंदर से आपने अब ये फिगर आउट करना है कि जो मेरे रिसर्च क्वेश्चंस है उनके बारे में क्या बात की हुई है इन पेपर्स में, जो मेरे रिसर्च क्वेश्चन. सो इन समहाउ इन दोज लाइंस यू कैन मेक दिस मैट्रिक्स. अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो जो
जो रिसर्च क्वेश्चंस है आपके, दोज रिसर्च क्वेश्चंस आर इन फैक्ट मेंशन्ड कि मेरा पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंगली उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके रिसर्च पेपर्स लिटरेचर रिव्यू के हैं वो क्या कह रहे हैं, वो राइट साइड के कॉलम में फिल हुई हुई या फिल करने होते हैं कि मेरा पहला सवाल ये है, इसके बारे में मेरा पहला जर्नल पेपर ये कहता है, दूसरा ये कहता है, तीसरा ये कहता है, 4 5 डिपेंड्स ऑन योर होमवर्क कि आप कितना अच्छा आप उसके अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है या आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। कुछ आपके काम को सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ आपके काम को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, उनकी फाइंडिंग डिफरेंट होंगी। So accordingly, this matrix can be made in the research world. This is called research synthesis matrix. आप इसे बनाएं या ना बनाएं, अल्टीमेटली इसी के इर्द गिर्द आपका तना बना बनता है रिसर्च प्रपोजल। आप टेक्स्ट में लिखते हैं, उस टेक्स्ट को लिखने का तरीका जो लिटरेचर रिव्यू में आप चीजें डाल रहे होते हैं वो इसी तरह की चीजें डाल रहे होते हैं। सिस्टमैटिक तरीका ये है कि अगर ये पहले बन जाए तो नाउ यू कैन इजीली मेक द लिटरेचर रिव्यू सेक्शन ऑफ योर एक्चुअल रिसर्च प्रपोजल व्हिच यू आर गोइंग टू राइट फ्रॉम दिस वन, बिकॉज इट्स इन टेबल फॉर्म, इट विल बी इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट क्रिस्प होगा, इसके अंदर से यू कैन इजीली decide and pick and accordingly write. My first question, उसके बारे में मुख्तलिफ sources के responses, second question responses, third question responses, or accordingly now you can write your literature review section and maybe redefine your theme. Okay जी, मैं जो बात कर रहा हूँ तो ठीक ही नहीं है क्योंकि मेरी available 5 sources में से 4 तो उसको support ही नहीं करते या उस तरह का काम नहीं करना चाहते, तो मुझे अपना research question change करना चाहिए, ये question ठीक नहीं है। Let me find out जो सब में सिमिलर टाइप का काम है और मैं उसको उस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? हसनैन। समझ आ रही है या नहीं आ रही? आनी चाहिए, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं तो सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ कि आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है वो लेफ्ट पे नोट डाउन कर दिए। 3 क्वेश्चन जनरली होते हैं आपके, या 3 क्वेश्चंस कह लें या 3 ऑब्जेक्टिव्स कह लें। वो ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट जो आपकी सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं वो वहां से नोट करने हैं, पढ़ने हैं आपने, वो आप वहां पे नोट डाउन करते जाएं। सो इन दिस वे यू कैन मेक अ रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिक्स, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट ये रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिक्स बनवाना आपसे नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है इससे पिछला वाला स्टेप कि वो सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लें जो कि ठीक है। ये आप करते हैं नहीं करते हैं आपकी चॉइस है, मैंने आपको सिर्फ बताना था कि जी एक रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिक्स भी बनता है और बनाया जा सकता है। कहीं आगे करेंगे आपको कोई कहे कभी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है, बट पॉइंट इज कि इससे कुछ काम आसान हो जाता है। मैं जो आपसे काम कराऊंगा वो मैं आपसे फिल कराऊंगा रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट, तो मुझे वहां से ये चीजें मिल जाएंगी। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट आपसे लिटरेचर रिव्यू लिखवाना है, राइट। बट ये पता होना चाहिए, अगर इस तरह कर लेंगे तो शायद आप में से कुछ लोगों को ये चीज आसान लगे कि इस तरीके से चीजें फिल करना ईजी है। सो आई होप अंडरस्टैंडिंग इज गॉन इनटू योर माइंड व्हाट डू वी मीन बाय रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिक्स, राइट। अब आगे चलते हैं, कोई सवाल ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का है तो आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? सर कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। नो सर। सर ये अगर हमारे बेस पेपर में ये वाले रिसर्च क्वेश्चन हमें नहीं मिले तो हम साथ बाकी पेपर इंक्लूड कर सकते हैं फिर? वकास का सवाल का जवाब ये है कि आपका एक बेस लाइन पेपर होगा, उस बेस लाइन पेपर में बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस गिवन होंगे, आप वहीं से शुरू करते हैं। टू स्टार्ट विद यू टेक द क्वेश्चंस ऑफ बेस लाइन पेपर। सर सारे क्वेश्चन का अगर आंसर वहां से हमें नहीं मिल रहा? सर बेस लाइन पेपर में अगर उसने क्वेश्चन आंसर दिए ही नहीं तो बेस लाइन पेपर तो ना हुआ ना। सर कुछ बेसलाइन ऐसे पेपर क्वेश्चन है हैं जो आपको बाकी किसी पेपर में मिल रहे हैं। सर, आपकी एक सोर्स है, उसी से आपने रेफरेंस लिया है कि क्या रिसर्च क्वेश्चन इसने एड्रेस किए और आप कह रहे हैं उसी में नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आपने सर सवाल पे नहीं, जरा गौर सम करें। कुछ ऐसे सर कुछ ऐसे हैं 1 2 जो नहीं मिले, बाकी मिल रहे हैं वहां से। मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपने रिसर्च क्वेश्चंस उठाए ही उसी पेपर से हैं, क्या उस पेपर से नहीं उठाए, कहीं और से लिए? इसका मतलब है आपके जो रिसर्च क्वेश्चन जिस पर आप काम कर रहे हैं वो सारे उसी पेपर में से होने चाहिए? होने चाहिए नहीं, मेरे सवाल की नौयत नहीं समझे आप। सर पहला सवाल आपका मेरा ये जो था, है ना। मेरा पहला जवाब सुन लें फिर अपने सवाल को रिपीट कीजिएगा। मैं जी आपसे जी। ये कह रहा हूँ कि रिसर्च क्वेश्चंस निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि बेसलाइन पेपर के अंदर से रिसर्च क्वेश्चंस उठा लिए जाए, ये पहला तरीका है। सही है दूसरा सर। तरीका ये है कि आप उससे कुछ क्वेश्चंस उठाएं, कुछ क्वेश्चंस और ऐड करें बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस या बेस्ड ऑन योर डिस्कशन विद द सुपरवाइजर।
सही है सर। ठीक हो गया। अब अगर से सही आपने सर। सेकंड अप्रोच यूज की है कि आपने 2 या 3 क्वेश्चंस उस बेसलाइन पेपर में से लिए हैं और 2 और ऐड किए हैं अपनी तरफ से, तो फिर डेफिनेटली ये जो पेपर आप पढ़ रहे हैं इनके पढ़ने का मकसद यही है कि आप कुछ जवाब किसी और से लेंगे, कुछ जवाब आप उससे लेंगे। लेमैन जवाब जो यही बनता है, जितना पढ़ेंगे उनमें आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जी आप वकास, सवाल आपका जवाब कुछ मिला है या अभी भी नहीं मिला? जी सर, मिल गया है सर, मिल गया। ओके, सो अगर मिल गया तो जवाब ये है कि इन रिसर्च पेपर्स के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। कुछ के एक में छुपे हुए हैं, कुछ के किसी और में छुपे हुए हैं, वहां से ढूंढें। रिसर्च क्वेश्चंस के जवाब जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद मिलते हैं, याद रखिएगा, पहले नहीं मिलते हैं। पहले सिर्फ आप पढ़ते हैं कि जी क्या क्या किसने कैसे एड्रेस किया, दैट्स ऑल। बाकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जवाब आते हैं। Okay, जी, so now coming on to the okay, I just cover time चूंकि कम है, let me cover the originality part. अच्छा जी, now I hope this slide is visible. Yes, sir. Okay, if it is visible तो fine. एलन ट्यूरिंग जो है ये बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंस का इसको बाबा या कहें कि गुरु कहा जाता है। और अगर आपने पाउंड का नोट देखा हो यूके का तो उसके ऊपर इसकी तस्वीर भी है। ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो आज आप लैपटॉप्स यूज करते हैं ये स्टार्ट इन भाईजान की है। दिस ही हैज द वन हु स्टार्टेड दिस एंड द फर्स्ट वन हु गेव कम अप विद द आइडिया कि इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए जिस जो कंप्यूटिंग मशीनरी के तौर पे इंसानों के पास होनी चाहिए। ठीक है, सो अब एक स्टेज थी कि ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ऑफ विद एन आइडिया एंड वर्क ऑन दैट, एंड नाउ देयर इज अ स्टेज जो अभी आपको नजर आती है लैपटॉप्स की, सुपर कंप्यूटर्स की, क्वांटम कंप्यूटर्स की। It's progressing in with the leaps and bounds. Huge investment और huge किस्म की रिसर्च है वो इस डोमेन के अंदर हो रही है। ऐसे ही एक लफ्ज यूज होता है रिसर्च कम्युनिटी में बहुत कॉमन, ओरिजिनलिटी। कि व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क, जो आपसे अभी शायद आपको अंदाजा नहीं, लेकिन जब आप आगे चलेंगे थोड़ा सा और तो आपसे लोग एक क्वेश्चन करेंगे जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे अपने काम को, तो पीपल विल आस्क यू व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क। ये वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप जवाब क्या दें इसका। उर्दू तर्जुमा इसका थोड़ा करना मुश्किल है, अंग्रेजी में ही इसका जवाब दिया जा सकता है कि किस तरीके से ओरिजिनलिटी डिफाइन होती है। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि जी एक मशीन थी जो आज से 100 साल पहले बनी थी और एक मशीन आज बन रही है, तो विच वन इज ओरिजिनल, या ओरिजिनलिटी की डेफिनेशन लगाई जाए तो क्या कहा जाए? क्या ओरिजिनल थी जो एलन ट्यूरिंग ने काम किया था, या ओरिजिनल है जो कि आज मेरे पास पड़ी है जिसने ये बनाई है लेनोवो ने? जी गुल साहब, नंबर आप कह रही है कुछ? कौन कह रहे थे? आवाज किसकी आई? आप कह रही है? अच्छा जी, सॉरी। ओके, जी जी, ठीक है, सही है जी। हसनैन, ये बेनिफिशियल है। सवाल ये था कि बेनिफिशियल कौन सी चीज है, सवाल तो ये नहीं था। तुम इधर आगे बैठ जाओ। किसके साथ बैठोगे? ये इनके साथ बैठो। क्या नाम है आपका? इकरा, इधर बैठो।
जब मर्द औरतों के साथ बैठते हैं ना तो उनकी हवास ज्यादा तेजी से काम करते हैं, पता है इस बात का? वैसे 10 में से 5 सेंसर बंद होते हैं, फिर 2-3 और एक्स्ट्रा खुल जाते हैं सेंसर। तो अभी आपके 10 में से 8 काम करना शुरू कर देंगे। तो मेरा सवाल क्या था, दोबारा रिपीट करो। इकरा, आप बताएंगे सवाल क्या था? तो आज हमारे जो न्यूज़ बन रही है मतलब वो पुरानी नहीं है या वीडियो नहीं, सही नहीं है सवाल ये पे। हाँ हाँ जी, आप जवाब दें या सोच लें। चले मैं इधर से आता हूँ, जब तक आपके जो सेंसर थोड़े थोड़े खुल रहे हैं ना, पूरे खुल जाए उसके बाद जवाब दीजिए। हाँ जी, आप बताएं इधर से। अमजद, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स ऑन ओरिजिनलिटी? Two machines, one is by Alan Turing, another one is here with me, developed by Lenovo. The new one, sir. The new one, that is original. The first one is not original. No, sir, it was original, but there is one You, because of the limitation of use and limitation of its functionalities, you are considering that it's more original. The current work is more original, and that one was not original. No, that one. चले वो था, बट वो कम था, ये ज्यादा। आपने एक नई चीज निकाली कि ओरिजिनलिटी कम ज्यादा भी हो सकती है। सही है, इट कुड बी लेस और मोर। दैट वाज 70% ओरिजिनल, दिस इज 100% ओरिजिनल, इज इट? चलें जी। जी अल्लामा इकबाल, दैट वाज ओरिजिनल, करंट वन इज नॉट। ओरिजिनल से कट किया गया और ओरिजिनल उसका पुरानी से हुआ था। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आपकी बात भी कुछ इस तरह की ठीक हो गया। जी नसीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर दोनों ओरिजिनल है, योर आंसर इज बोथ आर ओरिजिनल, फाइन। क्योंकि सर हर बंदे का प्रीवियस वर्क के ऊपर मैं काम करूँ, नई चीज डेवलप करूँ, तो वो मेरे लिए ओरिजिनल है। मतलब न्यू नॉट सेम एज द ओल्ड वन, बट वो ओरिजिनल है, वो भी ओरिजिनल है। ठीक है, चीजें तो बिल्कुल डेवलप ठीक है, होती रहती है ना सर। ठीक है, ठीक है। आप, आपकी बात हमने सुन ली है। लेट्स डिस्कस इट फर्दर विद अदर्स एज वेल। जी समर, पुरानी वाली ओरिजिनल है। हाँ जी, ठीक है। सर ओरिजिनेट तो ये एलन ट्यूरिंग नहीं है, इससे पहले कोई ऐसी मशीन नहीं थी। ठीक है, और उन्होंने ओरिजिनेट किया, उसके बाद में जितने भी आगे आगे के शेप्स हैं, डिफाइंड शेप्स हैं, और इमेज वर्क किया गया है साथ। एक नॉलेज के पास वर्क किया सकता है इसने क्या किया। ठीक। लेकिन सर ये एलन ट्यूरिंग तो कंप्यूटर साइंस का फेस में काम किया, मेरे ख्याल से उसने कंप्यूटर और बाकी चीजें उसने इन्वेंट तो नहीं किया थी। हम ये कहते हैं, हम इस तरह कहते हैं जी कि यहाँ खड़े होकर थीसिस डिफेंस जो है ना, एलन ट्यूरिंग ने किया होगा थ्योरी के ऊपर। थ्योरी के ऊपर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो किसी और ने बनाई से। और ये जी, मैं उसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। आइडिया जो है वो एलन ट्यूरिंग का था, और उसके बाद फिर इसके ऊपर आइडिया दिया उन्होंने। ठीक ठीक ठीक। कंप्यूटिंग मशीनरी पे इनका आइडिया था, एंड आई डोंट नो, मे बी इसने एक मशीन बनाई भी होगी। जब आइडिया दिया तो वेरीफाई किया होगा ना, तो एक मशीन बनी होगी जो कुछ कंप्यूटिंग कर रही होगी। अच्छा, अभी हम इस बात पे क्रिटिकल नहीं हो रहे कि इसने क्या किया था या गलत किया था, ठीक किया था, वो एक अलग चीज है। एक सिर्फ एक एनालॉजी डेवलप कर रहे हैं कि एक काम एक बंदे ने किया, से ये एक एग्जांपल है। और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, और एक उनकी एडवांस फॉर्म आज अवेलेबल है। तो मैं उस पर सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपका जवाब आ गया कि जी दिस इज ओरिजिनल, ओरिजिनल इसने किया था। अब उसके बाद आपने क्रिटिसाइज करना इसको शुरू कर दिया कि इसने वो किया था कि नहीं किया था, वो एक अलग चीज है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। वो आप चूंकि आप एजुकेशन सेक्टर की है तो आपने अपनी वो फिनोमेना बीच में ले आई है, लेकिन मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि जी ओरिजिनलिटी जो है वो एक एडवांस वर्जन में होती है या नहीं होती है। ठीक है सर मैं कुछ अर्ज करूं? क्या चीज? ओरिजिनलिटी क्या है? हाँ नहीं करें, आप बताएंगे इसमें। ओके, आप बताइए जी।
सर ये जो ऐलान ने आइडिया दिया और एक चीज बनाई सर, फिर हाँ। नेक्स्ट एक और रिसर्चर ने उसके काम को स्टडी किया और उसमें जो गैप्स नजर आए, तो जो सेकंड पर्सन है उसके लिए ओरिजिनल वर्ड वो ऐलान वाला है। फिर जो सेकंड है, थर्ड पर्सन आया, उसने जो सेकंड वाले ने जो रिसर्च किया था उस पे गैप एनालिसिस की, गैप आइडेंटिफाई किए, उस गैप्स को फर्दर इंप्रूव किया, तो थर्ड के लिए फर्स्ट सेकंड वन इज ओरिजिनल मेरे साथ, और उसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई? ओरिजिनलिटी सर वहीं से चली आ रही है, जो शुरू में था ना सर, जो उसने आइडिया दिया या कुछ वर्क किया उस पे, ठीक है, वो इस तरह इन्होंने कहा वो ओरिजिनल था, लेकिन अगले के उसका दूसरा पार्ट जो कि वो भी उसने ओरिजिनली शामिल किए, चीज को एक्सटेंड किया, बढ़ाया है, तो वो भी ओरिजिनल हो गया। फिर अगले में देखा तो उसने जो उसमें ऐड किया या इजाफा किया, उसके लिए वो ओरिजिनल हो गया, और आज की विषय में ये भी ओरिजिनल है सर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये चीज आप इसी को थोड़ा सा हम अब बेसिकली ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आप सब लोग थीसिस कर रहे हैं, एवरीबॉडी हैज टू डू अ थीसिस, एंड वंस यू डू अ थीसिस पीपल आस्क यू कि जी दिस थीसिस, इसमें क्या ऐसी चीज है जो आपने की है, व्हाट, हाउ कैन यू से दिस इज योर वर्क, देन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। तो आपको अगर पता होगा कि जी हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, it would be easier and more comprehensive answer from your side, otherwise आप गड़बड़ा जाएंगे कि यार मैं इसका क्या जवाब दूं, कि मैंने क्या किया इसके, ठीक है। So everybody's work out of you who is doing a thesis, his work or her work is original based on the definition of originality। वो क्या है? वो कुछ इस तरह की है कि ओरिजिनलिटी सिर्फ यही नहीं है कि जिसने ओरिजिन, जिसका आप में कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी ना कि किसने पहली दफा वो जिंदगी में चीज सोची थी और प्रेजेंट की थी, वही ओरिजिनल था, उसके बाद कोई और ओरिजिनल चीज नहीं है। अगर आप गौर करें तो हर बंदा जो आगे आ रहा है वो उसके अंदर से कुछ नई चीज खोद के उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसकी ओरिजिन की डेफिनेशन जो है थोड़ी सी आप उस लिहाज से ओरिजिनल है कि वो ओरिजिन अब उसका ओरिजिन है, अगले का उसका ओरिजिन है। तो डेफिनेटली खोदना जिसने शुरू किया था वो 20 मीटर पे गया था, अगला 10 मीटर पे आ गया, उससे अगला 5 मीटर पे आ गया, बट एवरीबडी इज डिगिंग, so everyone is got some origin to start with, so origin is not only the one जहां से वो चीज आज से 200 साल पहले शुरू हुई थी, it is even आज भी जो काम कर रहा है, आज जो काम कर रहा है वो भी ओरिजिनल काम है, because these definitions say so। इसको अगर आप गो थ्रू करें वन बाय वन, तो आप जो आपको खुद कन्विंस्ड है, आप इवन जो नहीं भी है वो भी कन्विंस्ड है, लेकिन सवालों के इन डेफिनेशन से शायद ज्यादा अच्छा उनको समझ आएगा। कैलकुलेटर वो चाहिए होगा जी, इधर रिमोट कंट्रोल, ये इसका कोई इशू है। बट अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे नजर आ भी रहा है, द फर्स्ट थिंग इज सेइंग समथिंग नोबडी हैज सेड बिफोर। ये वो है जो कि आपने बात की, जो एलन ट्यूरिंग ने कहा था वो उससे पहले किसी ने नहीं कहा था, तो ही वाज ओरिजिनल इन दैट सेंस, राइट। आगे देखते हैं, कैरी आउट एम्पिरिकल वर्क दैट हैज नॉट बीन डन बिफोर। अब ये हमारी बात आ गई, अब किसी ने उसके ऊपर डाटा एनालिसिस की, एम्पिरिकल वर्क किया और उस चीज को वेरीफाई किया। थ्योरी इज अपीयर्ड, बट थ्योरी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बाद में आते हैं, अगेन इट इज ओरिजिनल। तो अगर हम सिर्फ यहीं पे अपनी डेफिनेशन को क्लोज कर दें जी कि आइडिया तो मेरा था, काम किसी और ने कर लिया, तो मैं ओरिजिनल हूँ वो ओरिजिनल नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो वी हैव टू reconsider our points। थर्ड पॉइंट देखिए, synthesizing something that has not been put together before। ये एक आपके सामने एक पड़ी हुई है टेबल, इसमें ये पाइप्स, सोफा या गद्दा या ये फोम या ये लकड़ी के पीस जुड़े हुए हैं। ये जो चीज सिंथेसाइज हुई है, ये कोई पहली दफा थोड़ी सिंथेसाइज हो रही है, डेस्क तो अरसे से बन रहे हैं, लेकिन इस फॉर्म में ये पहली दफा सिंथेसाइज हुई, तो ये ओरिजिनल है। whosoever has done it, so anything which you make by taking various summaries from somebody's work, if you have put together it is original। 4 कोड है, आपने 4 कोड्स मिक्स करके एक काम कर लिया, you are original in that sense, because you have done something, a new problem, by taking assistance from various other solutions which people have done। हो गया जी, ये नहीं हो रहा। ओके जी, नेक्स्ट अगेन ये कह रहा है, मेकिंग अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ समवन एल्स मटेरियल और आइडियाज। इवन आइडिया इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट आपने उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी। फिजिक्स में इंटरप्रिटेशन थी, आपने केमिस्ट्री में अप्लाई कर दी। केमिस्ट्री में इंटरप्रिटेशन थी, आपने स्पेस साइंसेज में अप्लाई कर दी। स्पेस साइंसेज में एप्लीकेबिलिटी थी, आपने मैथमेटिक्स में ले आए। इट इज ओरिजिनल, nobody can challenge you, it is your work। taking a new technique and applying it to an existing area, taking an existing technique applying to a new area, it is original। both of them are original।
right? We move forward. Cross disciplinary हुए अगर आप, you are original. You are looking at a topic, nobody else has seen it like this, you are original. So you go through these, all these definitions, they indicate कि आप में से हर बंदा जो है वो original है, because once you are doing a thesis, you are collecting the ideas of various people and you're doing it as your own, as a solution which has not been done like the ones जो पहले किया गया. उसके लिए आपने अपना डाटा एनालिसिस किया है, डाटा आपने खुद कलेक्ट किया है, डाटा आपने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया है, थ्योरी को आपने मिक्स किया है, 4-5 चीजों को आपने इसके अंदर लेकर आए हैं और आपने अब एक इंटरप्रिटेशन नहीं दी है टू द प्रीवियस वर्क. सो यू आर ओरिजिनल इन दैट सेंस एंड you should be comfortable in explaining this to your question, whosoever asked you this question. ठीक है, we close here. आई थिंक नई टॉपिक अगला अगर मैं शुरू करता हूँ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है क्लास के पार्टिसिपेंट्स का, ये पहले ऑनलाइन से पूछ लेते हैं, आपका सेशन चूंकि क्लोज होने वाला है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? नो सर. नो मियां क्वेश्चन शाहिद, सर. नसीर. जी सर. मियां शाहिद, आपको मैं नहीं डांटूंगा, आप पूछें बेशक. नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ. अच्छा जी, और एनीबॉडी एल्स? ताहिर. सर ये हम जब ओरिजिनलिटी की बात करते हैं इसके अंदर, रिसर्च के अंदर, जी जी बताइए. सर आवाज आ रही है सर? आ रही है जी, आ रही है. ऐसा सर, हमने स्टार्ट में एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी हमने रिसर्च करनी है तो हमने जो करंट चीज चल रही करना है, जो रिसर्च ऑलरेडी जिन टॉपिक ऑलरेडी रिसर्च मौजूद हो, तो जो है ना हमने वो आगे, तो सर कहीं ना कहीं तो हमारे रिसर्च वर्क है वो सर थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज हो रही है वो चीज. आप दोबारा काइंडली रिपीट करें, सवाल आपका कट रहा था. सर हमने ओरिजिनलिटी का पढ़ा कि हमने जो चीज़ नई है हमारी, चाहे टेक्निक्स पुरानी हो लेकिन एक न्यू चीज़ हो, प्रीवियस मेथडोलॉजीज यूज़ कर रहे हो लेकिन एक नई चीज़ जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो ओरिजिनलिटी है बेसिकली. मतलब इसको अगर हम सम अप करें सिंपल वर्ड्स में, सर ऐसे ही है सर? आप सवाल पूछें. सर अभी सर जब हम अपने रिसर्च वर्क को हमने जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि हमने वो टॉपिक्स लेने हैं, वो चीज़ें लेनी है जिनके ऊपर ऑलरेडी काम हुआ हो. अगर उनके ऊपर काम चीज नहीं मिलती तो उनको हम स्किप कर देंगे, उससे हम नहीं लेंगे. ठीक है, सवाल अभी तक नहीं किया आपने. क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन. ताहिर, सेशन क्लोज होने वाला है. फील्ड में सर ऑलरेडी चीजों में काम हुआ हुआ है और उन्हीं चीजों पर हम दोबारा काम कर